last lecture, we have done the formula, that expression for pressure volume work. This formula is for the work done at constant pressure, correct? And what is the formula we got? That W is equal to minus P external into delta V. And in this formula, we have seen that work depends upon the work done depends upon the external pressure. Work done depends upon the external pressure. So this is the formula for the work done at constant pressure. After this concept, we have done one more concept called as free expansion. Now what is free expansion? The process in which there is zero opposing force, that is work done in the vacuum. The process in which there is no opposing force, that is work done in the vacuum, are called as a free expansion. Okay. Then after that, we have done the next concept, that is concept of maximum work. When the work done can be maximum, मतलब maximum work कभी होगा? तो maximum work is possible if the difference between the driving force and the opposing force is very small, and because of small difference the work done will be the maximum. So this is called as the concept of maximum work. And after this concept, in the last lecture, we have derived the formula for maximum work. And what is the formula for maximum work we got? See the last formula here, that work done is minus 2.303 nRT log to the base 10 V2 upon V1, correct, if volume is given. And then same formula we can also convert in the form of pressure, that is same formula can be also written as what? That work done is equal to minus the 2.303 nRT log P1 upon P2. Means if they have given the volume, use the formula as what? V2 upon V1. And if they have given the pressure, use the formula as what? P1 upon P2. So this formula we have done. Based on this formula, हमें न्यूमेरिकल सॉल्व करना है, but that numerical we'll do it in the next lecture. Now I'm just going for one more theoretical part, that is today we'll start with the new concept called as the internal energy. Now what is internal energy? See here, every substance, now internal energy is given by with symbol U. And what is internal energy? That every substance is associated with a definite amount of energy. Every substance is associated with a definite amount of energy, and this energy stored in a substance is called as internal energy, and it is denoted by the symbol U. Now I'll explain this concept and then I'll show the paper now. See, now I'm explaining the concept of internal energy. Now what is internal energy? See here. Now basically, see, the internal energy is given by which symbol? U. The very first thing here, we cannot measure page number 1, we cannot measure exact value of internal energy. The very first point, we cannot measure exact value of internal energy. Now exact value means what? That we have to see here. कि exact value का मतलब क्या होगा? Suppose for example, we are having a beaker and beaker is filled with the water. Suppose some water is taken in the beaker. Is there in the beaker also has got some energy present in it. मतलब beaker के अंदर जो water है,
यहाँ पे जो वाटर मॉलिक्यूल्स है, वाटर मॉलिक्यूल्स के अंदर भी कुछ एनर्जी है, करेक्ट। और वाटर मॉलिक्यूल के अंदर जो एनर्जी है दैट इज कॉल्ड एज द internal energy, because in the definition we have said what is internal energy. It is a definite amount of energy. It is a definite amount of energy associated with a system. Now associated with a system means what, कि अगर हम लोग ने यहाँ पे बीकर में पानी लिया हुआ है तो पानी के जो वाटर मॉलिक्यूल्स है वो एक जगह से दूसरे जगह जा रहे हैं, दूसरे जगह से और यहाँ पे आ रहे हैं, तो दे आर मूविंग, दे आर मूविंग मतलब व्हाट, these molecules are having, they are having kinetic energy, plus they are having potential energy, plus they are having different, like for example I can say अभी water है, water के बीच में क्या है, H और O के बीच में bond है, बाद में O, अगर यहाँ पे ऑक्सीजन है तो सेंटर में O रहेगा, O के सेंटर में न्यूक्लियस है, O के बाहर में इलेक्ट्रॉन्स है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी भी रहेगा. द एनर्जी प्रोड्यूस बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन आर कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी. प्लस वी आर हैविंग सेंटर में न्यूक्लियस है, तो बिकॉज ऑफ न्यूक्लियस जो एनर्जी रहेगा दैट इज कॉल्ड एज द न्यूक्लियर एनर्जी. Plus water molecules are moving from one place to other place, so they are having translational energy. Water molecules are rotating about itself, so that means they must be having rotational energy. And all this together मतलब water molecule जो हम लोग यहाँ पे लिया है, water molecule will have the kinetic energy, water molecule will have the potential energy, water molecule will have the electronic energy, water molecule will have the nuclear energy, water molecule will have translational energy, rotational energy, and sum of all energies together are called as internal energy. Sum of all energies together, मतलब इतने सारे एनर्जी को अगर हम साथ में ऐड करते हैं, ये सबका एडिशन करके जो हमें एनर्जी मिलेगा that is called as a internal energy. Okay, so basically, and that's why we given definition. What is internal energy? It is a definite amount of energy associated with a system. It is a definite amount of, मतलब अगर हम लोग कोई भी सिस्टम लेंगे, अभी जैसे हम लोग यहाँ पे बोला हमने बीकर में पानी लिया है, तो पानी के जो मॉलिक्यूल्स है वो भी अंदर ही अंदर मूव हो रही है, अंदर ही अंदर उनका मूवमेंट हो रहा है, उनके पास भी कुछ एनर्जी है, तो उनके पास जो भी एनर्जी है बिकॉज ऑफ विच दे आर शोइंग द मोशन आर कॉल्ड एज इंटरनल एनर्जी. और एक एग्जांपल ले लो, किसी इन दिस रूम, अभी हम लोग जहाँ पे बैठे हैं, देयर एयर इज देयर एंड एयर इज मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अदर प्लेस. तो एयर एक जगह से दूसरी जगह क्यों जा रहे हैं? तो एयर के पास काइनेटिक एनर्जी है, एयर के पास पोटेंशियल एनर्जी है, एयर के पास ट्रांसलेशनल एनर्जी है, एयर की मॉलिक्यूल के पास, सो ऑल दिस आर देयर टुगेदर, सो इज कॉल्ड इंटरेस्ट. मतलब हर में कोई भी सिस्टम अगर लेंगे तो ईच एंड एवरी सिस्टम, कोई भी सिस्टम होने दो, मतलब पानी हो या हवा हो या और कोई भी चीज हो, इवन वी एज अ ह्यूमन बीइंग, हमारे अंदर भी कुछ एनर्जी है. तो एवरी ह्यूमन बीइंग हैज अ सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रेजेंट इन इट, इन हिम और हर. तो हमारे पास एक डेफिनेट अमाउंट ऑफ एनर्जी है. तो प्राणी के अंदर भी एनर्जी है, हवा के अंदर भी एनर्जी है, ह्यूमन बीइंग के अंदर भी एक एनर्जी है. तो हर एक सिस्टम के पास जो उसका खुद का एनर्जी है, दैट खुद का जो एनर्जी है, दैट एनर्जी इज कॉल्ड एज अ इंटरनल एनर्जी. So what is internal energy? It is a definite amount of energy associated with a system. मतलब हर एक सिस्टम के पास एक certain amount of energy है, and that certain amount of energy present in a system are called as internal energy. Okay, now what I have said here that we cannot measure the exact value of the internal energy. मतलब अगर मैंने यहाँ पे बीकर में पानी लिया है और मैंने बोला कि पानी का इंटरनल एनर्जी मेजर करो, तो फॉर एग्जांपल मैंने अगर दो स्टूडेंट्स है, पहले को बोला पानी का एनर्जी मेजर कर, तो उसने मेजर कर दिया U1. ओके, U1 उसने मेजर कर दिया. लेकिन अगर दो स्टूडेंट हमारे पास अलग अलग है, तो पहले एक ने मेजर किया तो उसको एनर्जी मिला फॉर एग्जांपल 5 किलो जूल,
और दूसरे ने जब मेजर कर दिया तो उसको एनर्जी फॉर एग्जांपल मिला 10 किलो जूल। तो ऐसा वाटर तो वही है, बट द एनर्जीज ऑफ द वाटर आर डिफरेंट बाय डिफरेंट पर्सन। ऐसा अलग अलग क्यों मिल रहा है? क्योंकि जब पहले स्टूडेंट ने जब एनर्जी मेजर कर दिया तो मे बी ऐसा हुआ होगा कि वहां पे काइनेटिक एनर्जी लो था, और दूसरे स्टूडेंट ने जब मेजर कर दिया तो वहां पे काइनेटिक एनर्जी ज्यादा था। मतलब एनर्जी मेजर करते समय यहाँ पे जो वाटर मॉलिक्यूल्स है उनका स्पीड बढ़ सकता है, उनका स्पीड कम भी हो सकता है। तो मतलब वाटर मॉलिक्यूल स्टेशनरी नहीं है, वाटर मॉलिक्यूल एक जगह स्थिर नहीं रह रहे, दे आर कंटिन्यूसली मूविंग। तो इसलिए क्या हो रहा है, इंटर एनर्जी भी बार बार चेंज होगा। तो इसलिए मैंने क्या बोला, पहले स्टूडेंट्स को बोला इंटर एनर्जी मेजर कर, उसको मिला 5 किलो जूल। दूसरों को मिला, मतलब उसने 10 मिनट के बाद मेजर कर, उसको कितना मिला एनर्जी? 10 किलो जूल मिला, करेक्ट, 10 किलो जूल मिला, 10 किलो जूल मिला, करेक्ट। तो दोनों वैल्यू अलग अलग। बाद में मैंने पहले स्टूडेंट्स को क्या बोला, पहले स्टूडेंट्स को तुम अभी 10 मिनट के बाद वापस एनर्जी मेजर करो। तो उसने जब 10 मिनट के बाद एनर्जी मेजर कर दिया तो उसके बाद में एनर्जी मिला 10 किलो जूल। और ये स्टूडेंट्स को भी मैंने बोला कि तुम भी अभी 10 मिनट के बाद एनर्जी मेजर करो, तो उसको एनर्जी मिला 15 किलो जूल। तो व्हाट दे नोटिस हियर कि उनका, इसने जब एनर्जी मेजर किया स्टार्टिंग में तो 5 किलो जूल था, और 10 मिनट के बाद जब मेजर किया तो 10 किलो जूल था। इसने जब स्टार्टिंग में मेजर किया तो 10 किलो जूल था, और 10 मिनट के बाद मेजर किया तो 15 किलो जूल था। तो अगर मैंने बोला इन दोनों का स्टार्टिंग का वैल्यू ले लो, तो अरे एक का एनर्जी 5 आ रहा है, दूसरे का एनर्जी 10 आ रहा है, बराबर है। बाद में बोले दोनों का लास्ट का एनर्जी ले लो, 10 मिनट के बाद वाला लोगों तो भी दोनों का अलग आ रहा है। इसलिए हम लोग क्या करते हो, कंफ्यूजन मिटाने के लिए हम लोग मेजर करते हैं डेल्टा यू। तो we never measure the exact value u, but we measure what, delta u, and delta u का मतलब difference between the final internal energy minus initial internal energy. And here the final energy is 10, initial energy is 5, and 10 minus 5 is equal to how much I'm getting, 5 kilojoule. यहाँ पे भी नोटिस करो, फाइनल एनर्जी इज 15, इनिशियल एनर्जी इज 10, 15 माइनस 5 तो कितना आंसर आ रहा है, 5 किलो जूल आ रहा है। मतलब ये हमेशा सेम रहेगा। इसीलिए हम लोग इंटरनल एनर्जी का एग्जैक्ट वैल्यू नहीं मेजर करते। मतलब अगर मुझे कोई भी बोला कि यहाँ पे बीकर में पानी है, पानी का इंटरनल एनर्जी मेजर करो, तो मैं क्या करूंगा, फर्स्ट आई विल मेजर द U1, second I will measure the U2, and then I will take difference between the two, that is called as delta U. अगर मैं दूसरा कोई स्टूडेंट है, अगर मैंने उसे भी बोला कि इंटरनल एनर्जी मेजर कर, तो मैं पहले उसे क्या बोलूंगा, हाँ पहले U1 का वैल्यू मेजर कर, थोड़े टाइम के बाद U2 का वैल्यू मेजर कर, एंड देन टेक डिफरेंस बिटवीन द टू। सो व्हाट आई वांट टू टेल यू ऑल कि जब भी हमें इंटरनल एनर्जी मेजर करना है, वी ऑलवेज हैव टू कंसिडर व्हाट, डेल्टा यू। मतलब हम लोग खाली ऐसा नहीं लिख सकते कि u इक्वल टू 5, u2 इक्वल टू 10, नहीं, वी हैव टू से व्हाट, डेल्टा u। डेल्टा मतलब चेंज इन द इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू व्हाट, u2 minus u1, where u2 is the internal energy of the final state and u1 is the internal energy of the initial state. So what is inter energy? It is a definite amount of energy, it is a definite amount of energy associated with the system। मतलब हमारे पास कोई भी सिस्टम होने दो, हर एक सिस्टम के पास उसका खुद का एनर्जी रहेगा। अगर बीकर में वाटर है तो वाटर मॉलिक्यूल विल हैव देयर एनर्जी, अगर रूम में एयर है तो एयर मॉलिक्यूल विल हैव देयर ओन एनर्जी, अगर ह्यूमन बीइंग है तो हर एक ह्यूमन बीइंग में उसके बॉडी के अंदर जो एनर्जी रहेगा दैट इज कॉल्ड एज इंटरनल एनर्जी। एंड एवरी सिस्टम हैज its own internal energy, correct, every system has its own internal energy, and internal energy is made up of, internal energy is made up of all these factors, मतलब many more are there, और भी बहुत सारे फैक्टर्स है, लेकिन इन सारे को साथ में अगर ऐड करते हो, मतलब कौन कौन, काइनेटिक, पोटेंशियल, इलेक्ट्रॉनिक, न्यूक्लियर, ट्रांसलेशनल, रोटेशनल, ये सारे एनर्जीज को मिलने के बाद क्या बनेगा, इंटरनल एनर्जी बनेगा। तो एटलीस्ट तुम्हें यहाँ पे दो चीजें हमें पता चली, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ इंटरनल एनर्जी। सो व्हाट इज डेफिनेशन, इट इज अ डेफिनेट अमाउंट ऑफ एनर्जी एसोसिएटेड विथ अ सिस्टम। मतलब हर एक सिस्टम के साथ एक डेफिनेट अमाउंट ऑफ एनर्जी रहेगा, और हर एक सिस्टम का जो एनर्जी है दैट एनर्जी इज कॉल्ड एज अ इंटरनल एनर्जी। बाद में दूसरा पॉइंट मैंने क्या देखा कि इंटरनल एनर्जी का हम लोग एग्जैक्ट वैल्यू मेजर नहीं कर सकते,
बट इंटरनल एनर्जी का हम लोग कौन सा वैल्यू मेजर कर सकते हैं, डेल्टा यू। डेल्टा यू मतलब, डेल्टा यू का मतलब होता है हियर वी कैन मेजर change in internal energy. We can measure change in internal energy, and the change in internal energy is given by which formula? Delta U is equal to U2 minus U1, where U1 stands for system's initial internal energy, U2 stands for system's final internal energy. तो ये पॉइंट हुआ हम लोग अभी। नाउ आई एम गोइंग फॉर थर्ड पॉइंट हियर। द थर्ड पॉइंट आई वांट टू से हियर, इंटरनल एनर्जी इज अ स्टेट फंक्शन। Internal energy is a state function. Now already in one of the lecture in the beginning we have seen what is the meaning of the state function. What is state function? State function means what? State function means the value of its value. Its means internal energy. Internal energy का जो value है, its value depends on initial and final state of system. मतलब हमारा जो इंटर एनर्जी है वो स्टेट फंक्शन है। ये बहुत बार एमसीक्यूज में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में एक क्वेश्चन आता है कि इंटरनल एनर्जी इज विच फंक्शन? स्टेट फंक्शन। व्हाई स्टेट फंक्शन? means its value depends upon the initial state and final state. And one more here we can say internal energy is extensive property. Internal energy is a extensive property. Extensive means what? हम लोगों ने extensive का भी मीनिंग देखा था। हम लोगों ने extensive का भी मीनिंग देखा था। What is extensive? Any property whose value depends on amount of matter. मतलब the value of internal energy depends on amount of system. Amount, बिकॉज देखो हमने बोला था अगर तुम्हें ध्यान में रहेगा हमने दो टाइप की प्रॉपर्टी किए थे, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी एंड इंटेंसिव प्रॉपर्टी। एक्सटेंसिव मींस व्हाट? जो प्रॉपर्टी अमाउंट के ऊपर डिपेंड करेंगे उन्हें हम एक्सटेंसिव बोलते हैं, और जो प्रॉपर्टी अमाउंट के ऊपर डिपेंड नहीं करेंगे उनको इंटेंसिव बोलते हैं। तो हियर देखो अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल बीकर में अगर पानी कम रहेगा तो पानी का इंटरनल एनर्जी भी कम रहेगा, लेकिन अगर बीकर में पानी बहुत है तो पानी का इंटरनल एनर्जी भी ज्यादा रहेगा। मतलब इंटरनल एनर्जी का जो वैल्यू है डिपेंड करे अमाउंट ऑफ वाटर के ऊपर, एंड सिंस द वैल्यू ऑफ द इंटरनल एनर्जी डिपेंड्स अपॉन द अमाउंट ऑफ द वाटर, देयरफॉर इंटरनल एनर्जी इज अ विच प्रॉपर्टी? इट इज अ एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। सारे फिल इन द ब्लैंक्स आए हुए हैं और आ सकते हैं। ओके, नाउ आई विल गो फॉर द नेक्स्ट कंसेप्ट। यहाँ पे दो पॉइंट हम लोगों ने देखा कि इंटरनल एनर्जी इज अ स्टेट फंक्शन। नाउ वी ऑल नो व्हाट इज मीनिंग ऑफ स्टेट फंक्शन, that is value depends upon the initial and final state. Second, internal energy is a extensive property, मतलब the value of the internal depends upon the amount of matter. It depends upon amount of matter. मतलब हमारे सिस्टम के अंदर कितना मैटर है। अगर मैटर कम रहेगा तो विल हैव द लेस वैल्यू, एंड मैटर अगर ज्यादा रहेगा तो विल हैव द मोर वैल्यू। सो वैल्यू डिपेंड्स अपॉन द अमाउंट ऑफ मैटर। नाउ आई जस्ट गो फॉर वन थिंग, the fifth point I can say here, that is a transfer of energy to a system will
change its internal energy. A transfer of energy, मतलब अगर हम लोग एनर्जी ट्रांसफर कर रहे हैं, ट्रांसफर ऑफ एनर्जी टू अ सिस्टम, मतलब हम लोग एनर्जी किसे ट्रांसफर करें, सिस्टम को ट्रांसफर करें, तो ट्रांसफर ऑफ एनर्जी टू अ सिस्टम विल चेंज सिस्टम्स इंटरनल एनर्जी. देखो अभी मैं डायग्राम बताता हूं यहाँ पे. सपोज फॉर एग्जांपल सी वी आर हैविंग वन cylinder. In a cylinder a gas is enclosed and cylinder is fitted with a piston. तो अभी देखो मतलब यहाँ पे गैस है और गैस का इंटरनल एनर्जी रहेगा. गैस हैज अ इंटरनल एनर्जी, मतलब उसका इंटरनल एनर्जी कितना रहेगा, गैस हैज इट्स ओन एनर्जी. अभी हम लोग क्या करेंगे, देयर आर फर्स्ट कंडीशन, आई कैन से फर्स्ट कंडीशन, इफ heat is transferred to a system, if heat is transferred to a system, हीट ट्रांसफर करें मतलब क्या करेंगे, अगर हम लोग इसको गर्म करें, पहला कंडीशन, अगर गैस को हम लोग गर्म कर दो, गैस क्या करेगा, हीट को एब्जॉर्ब करेगा, और गैस अगर हीट को एब्जॉर्ब करेगा तो व्हाट हैपन, इफ हीट इज ट्रांसफर टू अ सिस्टम, ओके, अगर हम लोग गैस को हीट सप्लाई कर दिया तो गैस हीट एब्जॉर्ब करेगा, और गैस हीट एब्जॉर्ब करने के बाद द इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस विल increase. So if heat is transferred to a system, what we notice, system internal energy will increase. Second, if work is done on the system, देखो सेंटेंस क्या लिखा है मैंने, इफ वर्क इज डन ऑन द सिस्टम. अभी वर्क इज डन ऑन द सिस्टम बाय द सराउंडिंग, वर्क इज डन बाय द, सॉरी, वर्क इज डन ऑन द सिस्टम के ऊपर वर्क हो रहा है, और कौन कर रहा है, सराउंडिंग कर रहा है. दैट मीन्स सराउंडिंग इज डूइंग द वर्क ऑन द सिस्टम, मीन्स आवर सिस्टम इज गेटिंग कॉम्प्रेस. सिस्टम इज गेटिंग कॉम्प्रेस, हमारा सिस्टम मतलब गैस कॉम्प्रेस हो रहा है. तो जब गैस कॉम्प्रेस होगा तो गैस के मॉलिक्यूल एक दूसरे के नजदीक आ जाएंगे, और जब गैस के मॉलिक्यूल एक दूसरे के नजदीक आएंगे तो व्हाट वी नोटिस देयर, इट्स इंटरनल एनर्जी विल इंक्रीज. तो व्हाट वी हैव सीन हियर, हमें ये दो देखो मतलब दो पॉइंट में से हम इंटर एनर्जी इंक्रीज कर सकते हैं, कभी कभी इंक्रीज कर सकते. इफ हीट इज ट्रांसफर टू अ सिस्टम, मतलब अगर यहाँ पे गैस है और अगर हम लोग गैस को हीट सप्लाई करेंगे, गैस को अगर हीट सप्लाई करेंगे तो गैस विल एक्सपांड एंड गैस का इंटरनल एनर्जी बढ़ेगा. ये पहला पॉइंट. दूसरा, इफ वर्क इज डन बाय द सराउंडिंग ऑन द सिस्टम, मतलब गैस अगर कॉम्प्रेस हो गया, कॉम्प्रेस में क्या होता है, सराउंडिंग प्रेशर अप्लाई कर रहा है, तो सराउंडिंग एनर्जी लूज करेगा और सिस्टम का एनर्जी बढ़ेगा, बिकॉज वर्क इज डन बाय द सराउंडिंग ऑन द सिस्टम. तो सराउंडिंग जब कॉम्प्रेस करेगा तो यहाँ का एनर्जी कम होता है और यहाँ का एनर्जी बढ़ जाता है, एंड यहाँ का एनर्जी अगर बढ़ रहा है तो इंटरनल गो ऑन इंक्रीजिंग. So in these two cases, the system internal energy will increase. So when does the system internal energy will increase? If heat is transferred to a system, or if work is done on the system by the surrounding, then our system's internal energy will increase. Now I'll take the other condition. Fourth, the second point, if heat is removed, और रिमूवल ऑफ हीट बोल सकते हैं, इफ हीट इज रिमूव्ड फ्रॉम सिस्टम, देन व्हाट हैपन. देखो मतलब फॉर एग्जांपल यहाँ पे अभी दूसरा कंडीशन देखो, ये ऑलरेडी गैस है, गैस बहुत गर्म है, द हॉट गैस इज देयर.
तो अगर मैंने गैस से एनर्जी बाहर निकाला, अभी मैं यहाँ से एनर्जी बाहर निकाल रहा हूँ, पहले केस में क्या किया था हम लोगों ने, एनर्जी अंदर सप्लाई किया था, अभी मैं गैस से एनर्जी बाहर निकाल रहा हूँ, गैस से अगर मैंने हीट बाहर निकाल दिया तो टेम्परेचर ऑफ द गैस विल डिक्रीज। अगर अंदर का हीट अगर मैंने बाहर निकाला तो अंदर का हीट बाहर जाने के बाद यहाँ पे टेम्परेचर डिक्रीज होगा, और टेम्परेचर अगर डिक्रीज होगा तो अंदर का इंटरनल एनर्जी भी डिक्रीज होगा। तो रिमूवल ऑफ हीट मतलब अगर मैंने हीट रिमूव कर दिया तो व्हाट नोटिस, हमने क्या नोटिस किया, इफ हीट इज रिमूव्ड फ्रॉम द सिस्टम देन सिस्टम्स internal energy will decrease. Then system's internal energy will decrease. Now second, in that if work is done by the system, if work is done by the system on the surround, now who is doing the work? System is doing the work. Now when system is doing the work on the surrounding, that means it is a process of expansion. देखो यहाँ पे अगर गैस एक्सपांड हो जाएगा तो गैस विल पुश द पिस्टन इन द डायरेक्शन अपवर्ड डायरेक्शन, तो गैस अपना एनर्जी यूज कर रहा है पिस्टन को ऊपर पुश करने के लिए, तो सिस्टम इंटरनल एनर्जी विल डिक्रीज एंड सराउंडिंग विल इंक्रीज, बट सिस्टम का एनर्जी डिक्रीज हो रहा है। तो हियर वी कैन से हियर इफ द वर्क इज डन बाय द सिस्टम on the surrounding, that is expansion, systems internal energy decreases, and decreasing energy shown by which symbol, minus delta U. Decreasing energy shown by which symbol, minus delta U. तो होपफुली तुम्हें इतना समझ में आया होगा कि अगर हमारे पास सिस्टम है, मतलब फॉर एक सिस्टम का मतलब क्या, कि अगर हम लोगों ने यहाँ पे गैस को सिलेंडर के अंदर लिया हुआ है तो गैस का एनर्जी इंक्रीज भी हो सकता है और गैस का एनर्जी डिक्रीज भी हो सकता है। मतलब सिस्टम्स इंटरनल एनर्जी कैन बी इंक्रीज और सिस्टम internal energy can be decreased. How energy can be increased? If heat is transferred to the system. Heat transfer to system मतलब symbol क्या रहेगा, प्लस क्यू। heat trans मतलब heat supply करे तो प्लस क्यू रहेगा, and work is done by the surrounding on the system, the work of compression है, and work of compression के लिए symbol क्या होता है, प्लस डब्ल्यू होता है। मतलब अगर हमारा प्लस क्यू और प्लस डब्ल्यू वैल्यू रहेंगे तो सिस्टम का इंटरनल एनर्जी इंक्रीज होगा। लेकिन इफ हीट इज रिमूव्ड, इफ हीट इज रिमूव्ड फ्रॉम द सिस्टम, रिमूव मतलब क्या रहेगा, माइनस क्यू, और इफ वर्क इज डन बाय द सिस्टम ऑन द सर्वर, मतलब कॉम्प्रेस एक्सपांशन का वर्क मतलब माइनस डब्ल्यू अगर वर्क रहेगा तो इन दिस केस सिस्टम इंटरनल एनर्जी विल डिक्रीज। ओके, तो एटलीस्ट तुम्हें इतना तो समझ में आ रहा होगा कि हमारे पास अगर पानी रहेगा या हमारे पास गैस रहेगा तो उनका एनर्जी कम ज्यादा हो सकता है, और उनका एनर्जी कम ज्यादा होगा किसके ऊपर डिपेंड करता है, हाउ मच हीट वी आर सप्लाइंग और रिमूविंग, एंड वेदर इज वर्क डन बाय द सिस्टम और वर्क डन बाय द सराउंडिंग ऑन द सिस्टम, तो इसके ऊपर वो डिपेंड करेगा। अभी मुझे आगे वाले एग्जाम्पल के लिए जाना है, लेकिन एक बार मैं वापस रिपीट कर लेता हूँ, फिर तुम्हें अगर कोई डाउट होगा तो मुझे बोल दो। तो सबसे पहले हमने क्या देखा था यहाँ पे, व्हाट इज इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी का मतलब क्या होता है कि हर एक सिस्टम के पास एक खुद का एनर्जी होता है और वो एनर्जी के इस कारण वो अपना काम कर सकता है, मतलब दैट इज कॉल्ड एज अ इंटरनल एनर्जी। So it is a definite amount of energy associated with a system are called as internal energy. Second point, ये first point था। Second point क्या था कि we cannot measure the exact value of the internal energy, correct? But we can measure change in the internal energy, that is delta U is equal to U2 minus U1, where U1 is system initial internal energy and U2 is system final internal energy. Third point क्या था कि internal energy is a which function, state function, मतलब it value depends upon the initial state and final state of the system. Fourth point क्या था मैंने कि internal energy is which property, extensive property,
मतलब its value depends on amount of matter. और fifth point, what I've said, a transfer of energy to a system, मतलब अगर हम लोग सिस्टम को एनर्जी अगर ट्रांसफर कर रहे हैं तो सिस्टम का इंटरनल एनर्जी चेंज हो जाएगा, लेकिन वो दो तरीके से है। सिस्टम का एनर्जी बढ़ भी सकता है, सिस्टम का एनर्जी कम भी हो सकता है। अगर हम लोगों ने सिस्टम को हीट अगर सप्लाई किया या अगर हमने वर्क इज डन बाय द सराउंडिंग ऑन द सिस्टम हुआ, देन द सिस्टम इंटरनल एनर्जी विल इंक्रीज। बट और यहाँ पे प्लस क्यू प्लस डब्ल्यू, मतलब ये दोनों कंडीशन अगर रहेंगे तो सिस्टम का एनर्जी बढ़ेगा। बट इफ हीट इज रिमूव्ड फ्रॉम द सिस्टम और इफ द वर्क इज डन बाय द सिस्टम ऑन द सराउंडिंग, देन सिस्टम इंटरनल एनर्जी विल डिक्रीज। ठीक है, तो अब मुझे एक टॉपिक इसका एग्जांपल मुझे लेना है, बट बिफोर आई गो फर्दर, प्लीज किसी को अगर कुछ डाउट रहेगा तो मुझे बोल दो। मैं इतना सबको समझ में आ रहा होगा वर्क डन बाय द सिस्टम और वर्क डन बाय द सराउंडिंग ऑन द सिस्टम की मीनिंग सारे समझ में आते होंगे। तो प्लीज पुट योर ऑडियो ऑन, मतलब खुद को अनम्यूट करो और मुझे बोलो कहाँ पे डाउट है। तो हाथ वगैरह मत बताओ तो भी चलेगा, अगर ऑडियो मतलब है डो नॉट रेज योर हैंड एंड ऑल। अगर है डाउट है तो डायरेक्टली ऑडियो ऑन करो और बोल दो कि यहाँ पे डाउट है मुझे। शायद तुम्हें जो डाउट रहेगा और किसी को भी रहेगा तो वो भी क्लियर हो जाएगा, मतलब बोल दो। बोलो विघ्नेश, गौरी और बाकी और बहुत बच्चे बोल सकते हो। यस प्लीज। ओके ठीक है, थैंक यू यश, विघ्नेश। ओके, और कोई? सब स्टूडेंट सबको समझ में आ रहा है कि खाली अपना ऑडियो कान में लगा के ऐसा मतलब घर पे बैठ के मस्त प्रिटेंड कर रहे हो कि बहुत अच्छी तरह से लेक्चर सुन रहे हो करके? ठीक है गौरी, थैंक। तेजस्विनी शिर्के, थैंक यू। ओके चलो ठीक है, यहाँ पे डाउट नहीं। अभी मैं इसके ऊपर एग्जाम्पल थोड़े ले लेता हूँ ताकि थोड़ा कंसेप्ट तुम्हें समझ में आ जाए। ओके, तो आई जस्ट राइट डाउन द 6 पॉइंट। ये हमारा फिफ्थ का 1 था और ये फिफ्थ का 2 था। नाउ 6 पॉइंट उन्होंने क्या बोला है, देखो उन्होंने एग्जाम्पल दिए हैं। See, I'm just right. Suppose if I say 30 kilojoule of heat is supplied to a system. 30 kilojoule of the heat is supplied to the system. What will be its internal energy? देखो अभी उन्होंने क्या बोला यहाँ पे, 30 किलोजूल हीट हम लोग सप्लाई कर रहे हैं, सिस्टम को सप्लाई कर रहे हैं। मतलब ऐसा है डायग्राम तुम्हारा, यहाँ से हीट सप्लाई कर, मतलब हीट अंदर जा रहा है। हीट अगर अंदर जा रहा है तो हीट का सिंबल क्या रहेगा, प्लस क्यू रहेगा। और हीट अगर अंदर जा रहा है तो सिस्टम का एनर्जी बढ़ेगा, मतलब इंटर एनर्जी विल इंक्रीज। तो अगर हम लोग जितना हीट सप्लाई करेंगे उतना सारा हीट अंदर ही जा रहा है, तो देयरफॉर यहाँ पे हमारा जो इंटर एनर्जी रहेगा 30 किलोजूल ऑफ द हीट अगर हम लोग सप्लाई करें सिस्टम को, तो हमारे सिस्टम का इंटरनल एनर्जी जो है वो +30 से बढ़ेगा। ये एक हुआ। दूसरा और एक एग्जांपल हम लोग लेते हैं यहाँ पे। सेकेंड एग्जांपल ऐसे, इफ 20 किलोजूल ऑफ वर्क, तो वर्क में बराबर देखो 20 किलोजूल ऑफ वर्क इज डन ऑन द सिस्टम। ये इसका वर्डिंग तुम्हें बराबर समझ में आ रहा हो ऐसा मैं मानता हूं। 20 किलोजूल ऑफ वर्क इज डन ऑन द सिस्टम। वर्क इज डन ऑन द सिस्टम। अभी वर्क इज डन ऑन द सिस्टम मतलब कौन सा वर्क रहेगा? कोई तो अपना अनम्यूट करके बोल सकता है क्या? एक्सपांशन रहेगा कि कॉम्प्रेशन रहेगा? वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, प्लीज।
अरे बोलो, तुम्हारे कारण बाकी के लोगों को समझ में आ जाएगा. Yes, from compression. ठीक है, तो 20 किलो जूल ऑफ द वर्क इज डन बाय दिस. थैंक यू. हाँ, तो ऐसा ऑडियो ऑन करके बोलेगा तो भी चलेगा. इफ 20 किलो जूल ऑफ द वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, वर्क डन ऑन द सिस्टम मतलब क्या रहेगा? कॉम्प्रेशन रहेगा. और कॉम्प्रेशन में हमेशा ध्यान में रखना, देखो ये सिस्टम है, हम लोग कॉम्प्रेस करें. कॉम्प्रेस मतलब गैस मॉलिक्यूल नजदीक आ रहे हैं, और गैस मॉलिक्यूल अगर नजदीक आ जाएंगे तो इंटरनल एनर्जी विल गो ऑन इंक्रीजिंग. तो जितना हम लोगों ने बाहर से एनर्जी सप्लाई किया था, सारा का सारा एनर्जी यूज हुआ है यहाँ पे. तो हमारा इंटरनल एनर्जी कितना आएगा? डेल्टा यू इज इक्वल टू प्लस 20 किलो जूल, प्लस 20 किलो जूल. और अभी मैं और एक एग्जांपल लेता हूँ यहाँ पे. देन व्हाट इज नेक्स्ट एग्जांपल हियर? सपोज a system releases 10 किलोजूल ऑफ हीट. सिस्टम रिलीज कर रही, सिस्टम कितना हीट रिलीज कर रहा है? 10 किलोजूल. सिस्टम रिलीजेस 10 kilojule of heat and perform 15 kilojoule of work on the surrounding. On the surrounding, then what is the change in the internal energy? तो यहाँ पे देखो दो वैल्यूज दिए. तो सबसे पहले देखो उन्होंने क्या बोला है? सपोज अ सिस्टम रिलीजेस द 10 किलोजूल ऑफ हीट. हमारा सिस्टम जो है वो हीट रिलीज कर रहा है. रिलीज कर रहा है मतलब दे हैव गिवन द वैल्यू ऑफ माइनस क्यू, और Q इक्वल टू मतलब Q इक्वल टू माइनस वैल्यू दिया माइनस 10 किलोजूल. सिस्टम हीट रिलीज कर रहा है, अगर एब्जॉर्ब किया होगा तो प्लस, रिलीज किया इसलिए माइनस. एंड परफॉर्म, सिस्टम भी देखो, एंड परफॉर्म 15 kilojule of the work, 15 kilojule of the work on the surrounding. Now is work done by the system on the surrounding. तो वर्क का साइन क्या आएगा? ये कौन से टाइप का वर्क है पहले मुझे बोलो? वर्क डन ऑन द सराउंडिंग. तो वर्क डन बाय द सिस्टम ऑन द सराउंडिंग मतलब कौन सा वर्क आएगा? एक्सपांशन और कॉम्प्रेशन. बोलो. एक्सपांशन, करेक्ट. इज एक्सपांशन बिकॉज वर्क डन बाय द सिस्टम ऑन द सराउंडिंग. दो ही वर्क है, एक तो सिस्टम वर्क करेगा, सराउंडिंग वर्क करते. यहाँ पे वर्क डन बाय द सिस्टम ऑन द सराउंडिंग माइनस आएगा. तो हमारा इंटरनल एनर्जी बनेगा, इंटरनल एनर्जी कितना आएगा? -10 and -15 is equal to -25 kilojoule. मतलब here in this example system internal energy decreases. In this example system internal energy decreases. Okay, तो ये हमारा एग्जाम्पल हुआ. तो एक उससे रिलेटेड मैं एग्जाम्पल ले लेता हूं. देखो और यहाँ पे एग्जाम्पल है, एक प्रॉब्लम ही है मतलब ओवरऑल, लेकिन उन्होंने क्या बोला? इन अ पर्टिकुलर रिएक्शन, इन a particular reaction 2 kilojoule of heat is released. 2 kilojoule of heat is released by the system, and 6 kilojoule of work is done. कोणाचा तरी ऑडिओ ऑन आहे रे, प्लीज अनम्यूट, सॉरी म्यूट करा. बघा हा प्रॉब्लेम आहे. काय प्रॉब्लेम विचारला बघा? इन अ पर्टिक्युलर रिएक्शन 2 kilojoule of the heat is released. Now 2 kilojoule of the heat, heat means Q. Now we know Q has two sign, plus and minus.
So 2 kilojoule of the heat is released. Release means minus 2 kilojoule and released by the system, and 6 kilojoule of the work is done on the system. 6 kilojoule of the work is done. So work is done 6 kilojoule. But tell me now here, work is done on the system. Now work is done on the system means it is expansion or compression. Compression. It is compression. Work is done on the system is it is compression, and work of the compression is positive, correct? And therefore if I want to measure internal energy, that is delta U is equal to what I can write, minus 2 plus 6 is equal to plus 4 kilojoule. तो होपफुली यू अंडरस्टूड हियर कि यहाँ पे ये मतलब तुम्हें Q के दो वैल्यूज है प्लस माइनस, W के भी दो वैल्यू है प्लस माइनस, एंड इंटरनल एनर्जी के दो वैल्यू होते हैं प्लस एंड माइनस. तो ये हमारा इंटरनल एनर्जी का कंसेप्ट हो गया. ओके, तो नाउ जस्ट गो फर्दर. ओके, नाउ आई स्टार्ट विद द न्यू हेडिंग. एटलीस्ट एक कंसेप्ट हमारा हो जाएगा. दैट I'll go for the next, that is the first law of मैंने जो तुम्हें नोट्स भेजे हुए हैं, नोट्स में मैंने सब कुछ दिया हुआ है. एटलीस्ट वहां से बाद में पढ़ लोगे तो सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे. फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स. Now what is first law of thermodynamics here? It is the law of conservation of energy. Like it is the law of conservation of energy. ये सबसे मेन स्टेटमेंट है. यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एनर्जी कंजर्व के बारे में. ओके, सेकेंड पॉइंट क्या है, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, स्टेटमेंट मुझे देना है, लेकिन अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द एनर्जी ऑफ and the total energy of system and surrounding always remains constant. According to this law, total energy of the system and surrounding remains constant. मतलब total energy मतलब क्या हुआ देखो. For example, again I'm just taking the same example. Some gas is enclosed in a cylinder. ये gas मतलब हमारा system है. Gas fitted with the piston, ये बाहर का surrounding. अगर मैंने बोला कि यहाँ पे गैस का एनर्जी है स्टार्टिंग में 10 किलो जूल और सराउंडिंग का एनर्जी स्टार्टिंग में है फॉर एग्जांपल 15 किलो जूल, तो टोटल इज इन द बिगिनिंग इज 25 किलो जूल. सिस्टम का एनर्जी 10 किलो जूल है, सराउंडिंग का एनर्जी 15 किलो जूल है, टोटल इज 25 किलो जूल. नाउ वी नो दैट सराउंडिंग हैज मोर एनर्जी, यहाँ पे कॉम्प्रेशन होगा. अगर कॉम्प्रेशन होगा तो फॉर एग्जांपल यहाँ का एनर्जी फॉर एग्जांपल अगर 20 हुआ तो यहाँ का एनर्जी कम हो जाएगा और यहाँ पे एनर्जी कितना होगा, फिर यहाँ पे 20 हुआ तो यहाँ पे कितना आएगा, 5 आएगा. मतलब जब एक सराउंडिंग इसको कॉम्प्रेस करेगा, सराउंडिंग अगर इसे कॉम्प्रेस करेगा तो सिस्टम का एनर्जी बढ़ा, कितना बढ़ा, 20, लेकिन यहाँ पे जितना इंक्रीज होगा इतना वहां पे कम होगा, तो यहाँ पे एनर्जी 5 बचा और टोटल फिर यहाँ पे भी कितना आ रहा है, टोटल 25 आ रहा है. मतलब प्रोसेस स्टार्ट होने के पहले हमारे ये सिस्टम और सराउंडिंग का एनर्जी 25 था और प्रोसेस स्टार्ट होने के बाद भी सिस्टम और सराउंडिंग का एनर्जी 25 था. मतलब अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम एंड सराउंडिंग ऑलवेज रिमेन्स द कांस्टेंट. मतलब यहाँ पे एक्सपांशन होगा, यहाँ पे कॉम्प्रेशन होगा, कुछ भी होगा, बट टोटल एनर्जी विल रिमेन्स द सेम. अगर फॉर एग्जांपल
ये गैस अगर एक्सपांड होता, अगर ये गैस एक्सपांड हो जाएगा तो गैस का एनर्जी फॉर एग्जांपल 5 किलो जूल हो जाएगा, मतलब 5 से कम हुआ, यहाँ पे सराउंडिंग का एनर्जी कितना होगा 20 किलो जूल होगा, तो टोटल कितना हुआ 25 हुआ। मतलब वेदर द गैस कैन कॉम्प्रेस, whether the gas can expand, but total energy of the system and surrounding will always remain constant. मतलब total एनर्जी में फर्क नहीं आएगा, मतलब सिस्टम का एनर्जी कम होता है तो सराउंडिंग का बढ़ेगा, सराउंडिंग का कम हो रहा है तो सिस्टम का बढ़ेगा, बट टोटल विल ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट। करेक्ट। तो ये मतलब ये लॉ का मेन बेस है। ये लॉ में क्या बताया गया हमें कि अकॉर्डिंग टू दिस लॉ व्हाट इज इंपॉर्टेंट, द फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज अ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अभी कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी समझ में आ रहा है कि यहाँ पे एनर्जी अगर बढ़ गया तो यहाँ से कम हो जाएगा, और यहाँ से कम होगा तो इधर बढ़ेगा, मतलब एनर्जी हम लोग कंजर्व कर रहे हैं, हम लोग एनर्जी को डिस्ट्रॉय नहीं कर रहे, हमारा जो एनर्जी है उसे हम लोग एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो एनर्जी कंजर्व कर, दैट्स व्हाई it is called as a law of, so always sometime they ask in the multiple choice question that first law of thermodynamic, it deals with what, it is a law of conservation of energy. According to this law, total energy of the system and surrounding always remain constant. So now I have to give you all the statement कि ये law के statement क्या है वो हमें देखना, law के statement। तो law के statement क्या रहेंगे देखो, statement, so I'll just write down here statements of first law, statement of the first law. So one by one I'll just tell you all the statement। 1 minute, what is the first statement? The first statement is energy of the universe, energy of the universe remains constant। एनर्जी ऑफ द यूनिवर्स, अभी यूनिवर्स का मतलब कैसे मालूम है, अभी यहाँ पे ये डायग्राम देखो, अगर मैंने यहाँ पे एक बॉक्स डाला, ये बॉक्स, तो ये हमारा बॉक्स मतलब क्या बनेगा, यूनिवर्स बनेगा। मतलब यहाँ से एनर्जी कम होगा तो यहाँ पे बढ़ेगा, यहाँ से एनर्जी कम होगा तो यहाँ पे बढ़ेगा, बट टोटल रिमेन सेम। तो हमारे यूनिवर्स का एनर्जी 25 है, हमारे यूनिवर्स का एनर्जी 25 है, और हमारे यूनिवर्स का एनर्जी मतलब यूनिवर्स का एनर्जी मतलब क्या होगा, यहाँ से कम होगा तो इधर बढ़ेगा, यहाँ से कम होगा तो इधर बढ़ेगा, और टोटल ऑलवेज रिमेन द सेम। दैट द फर्स्ट पॉइंट, एनर्जी ऑफ द यूनिवर्स रिमेन कांस्टेंट, एनर्जी ऑफ द यूनिवर्स रिमेन कांस्टेंट। और सेकेंड पॉइंट, टोटल, the total internal energy of an isolated system, total internal energy of an isolated system is constant। total internal energy, अभी isolated मतलब, can anyone give me the example of isolated system, can anyone give me the example of isolated system, हम कौन से सिस्टम को आइसोलेटेड सिस्टम बोलते हैं प्लीज। कैलोरीमीटर, ठीक है, वो तुम्हारा फिजिक्स का एग्जांपल हुआ, यहाँ का एग्जांपल दे सकते हो तो बोलो। थर्मोडायनामिक्स में, या मुझे पहले आइसोलेटेड का मीनिंग बोलो। हमने 3 टाइप के सिस्टम किए थे, ओपन सिस्टम किया था, क्लोज सिस्टम किया था, और आइसोलेटेड भी किया था। तो व्हाट इज मीनिंग ऑफ आइसोलेटेड, बोलो। यस, विच एग्जाम्पल सी वी आर डन इन द पास्ट, हमने आइसोलेटेड के लिए क्या एग्जाम्पल दिया था, क्या एक डायग्राम होता है, कैसे कंसेप्ट होता है, स्टूडेंट प्लीज बोलो। नॉट इन द कॉन्टैक्ट विद द गया, कप एंड
सॉसर नहीं, देखो आइसोलेटेड के लिए एग्जांपल क्या दिया था मैंने कि आइसोलेटेड मतलब द रिएक्शन परफॉर्म इन द थर्मस फ्लास्क, क्लोज वेसल भी नहीं, क्लोज मतलब क्लोज है लेकिन थर्मस फ्लास्क, थर्मस फ्लास्क क्यों, अगर फ्लास्क के अंदर अगर तुमने हॉट टी रखा, अगर थर्मास फ्लास्क है तो यहाँ पे क्या हुआ, अंदर का एनर्जी बाहर नहीं जाएगा, बाहर का एनर्जी अंदर नहीं आएगा, मतलब अंदर का एनर्जी जो भी है वो कांस्टेंट रहेगा। तो टोटल इंटरनल एनर्जी ऑफ एन, इसे हम लोग आइसोलेटेड बोलते हैं। व्हाट इज आइसोलेटेड सिस्टम, द सिस्टम विच नाइदर एक्सचेंज एनर्जी नॉर मैटर विद द सराउंडिंग, मतलब देखो अंदर का जो चाय है, गर्म चाय, उसके जो वेपर्स है वो बाहर नहीं आएंगे, और बाहर के पानी के वेपर्स, बाहर का एयर अंदर नहीं जाएगा। दूसरा, अंदर अगर टेम्परेचर 30 है तो 30 रहेगा, वो कम नहीं होगा। अंदर टेम्परेचर अगर 5 है तो 5 रहेगा, वो कम नहीं होगा। मतलब यहाँ पे मैटर और एनर्जी एक्सचेंज नहीं हो रहा है, और जहां पे मैटर और एनर्जी एक्सचेंज नहीं होता है, वी कॉल सच अ सिस्टम एज अ आइसोलेटेड सिस्टम। सो व्हाट इज आइसोलेटेड सिस्टम, a system which neither exchange energy nor matter with surrounding are called as isolated system। और अगर यहाँ से अंदर से एनर्जी बाहर नहीं जा रहा है, बाहर से एनर्जी अंदर नहीं आ रहा है, तो अंदर का जो एनर्जी वो चेंज होगा ही नहीं। तो टोटल इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम विल रिमेन, मतलब अंदर का एनर्जी अगर 5 किलो जूल है तो लास्ट तक 5 किलो जूल ही रहेगा, ना तो कम होगा ना तो बढ़ेगा। करेक्ट। और तीसरा स्टेटमेंट मैं दे रहा हूँ, तीसरा स्टेटमेंट, the third statement is, which already are done from school level, that energy is neither created nor destroyed, it may get converted from one form to another. Like here I will give you the example. See, when water is flowing from the dam, when water is flowing down from the dam, so as long as, जब तक पानी वहां पे स्टोर किया है डैम के अंदर, तो वाटर के पास कौन सा एनर्जी होता है, पोटेंशियल एनर्जी होता है। जब वाटर फ्लो करना स्टार्ट करेगा तो पोटेंशियल एनर्जी विल चेंज इनटू काइनेटिक एनर्जी। जब वो फ्लोइंग वाटर टर्बाइंस के ऊपर गिरेगा, टर्बाइंस विल जो मतलब जो जनरेट रोटेट होंगे, तो काइनेटिक एनर्जी विल कन्वर्ट इनटू थर्मल एनर्जी, मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी बाद में। तो वी आर कन्वर्टिंग एनर्जी फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। बट हम लोग ऐसा नहीं कि हम लोग एनर्जी अपने आप से बना रहे, या हमारे पास जो एनर्जी हम लोग डिस्ट्रॉय कर, नहीं, हम लोग एनर्जी को कभी भी क्रिएट भी नहीं कर सकते, हम लोग एनर्जी को अभी डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते। वी ऑलवेज कन्वर्ट एनर्जी फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। सो ये हमारे तीन स्टेटमेंट है। सो द स्टेटमेंट ऑफ द फर्स्ट लॉ आर, व्हाट इज स्टेटमेंट ऑफ द फर्स्ट लॉ, एनर्जी ऑफ द यूनिवर्स रिमेन कांस्टेंट। सेकेंड, the total internal energy of an isolated system also remain constant. Third, energy is neither be created nor be destroyed, it may get converted from one form to another form. Correct. So these are the three statement of the first law. Correct. Okay, and now I'll just say the last part of this, that is a mathematical expression. The next heading I'm having over here as mathematical expression, or I can say formula for first law of फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। ये हमने जो यहाँ पे लिखे हुए हैं, दे आर द स्टेटमेंट, इधर जो लिखे हुए स्टेटमेंट है। करेक्ट। अभी मैं फॉर्मूला क्या होगा, फॉर्मूला का स्टेटमेंट में लिख रहा हूँ, पहले स्टेटमेंट क्या आएगा। देखो फॉर्मूला कैसे बना है, तो फर्स्ट लॉ का फॉर्मूला क्या है, देखो, सपोज Q is heat
suppose Q is heat supplied to the system. If Q is a heat supplied to the system, heat supplied मतलब plus Q. हम लोग सिस्टम को हीट सप्लाई करें. इफ Q is the heat supplied to the system and W, that is work, W means work done on the system. Work done on the system. Work done on the system मतलब क्या होगा? Work done on the system मतलब compression, और compression का work कैसे होता है? Positive होता है. And work done on the system, the internal energy will क्या होगा? The internal, देखो ये भी positive है, ये भी positive है. The system's internal energy will increase. Correct? System internal energy will increase. तो increase मतलब ये formula हुआ फिर delta U is equal to Q plus W. So delta U is equal to Q plus W. This is the formula for the first law of thermodynamics. ये formula कैसे आया देखो. Why? Q is a heat supply to system. मतलब हम लोग सिस्टम को हीट सप्लाई कर रहे, हीट सप्लाई कर रहे मतलब प्लस Q. एंड W इज अ वर्क डन ऑन द सिस्टम. सिस्टम के ऊपर वर्क हो रहा है. सिस्टम के ऊपर मतलब कैसे होगा? वर्क डन बाय द सराउंडिंग ऑन द सिस्टम, एंड वर्क डन बाय द सराउंडिंग ऑन द सिस्टम मतलब क्या रहेगा? प्लस W रहेगा. और ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, तो हमारे सिस्टम का एनर्जी बढ़ेगा. तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक. एंड व्हाट इज द फॉर्मूला? डेल्टा U इज इक्वल टू Q प्लस W. डेल्टा U मतलब चेंज इन इंटरनल एनर्जी, Q मतलब हीट एंड W मतलब वर्क. लेकिन हमें मालूम है डेल्टा U के भी दो साइन होते हैं, प्लस एंड माइनस. Q के भी दो साइन होते हैं, प्लस एंड माइनस. एंड वर्क के भी दो साइन होते हैं, प्लस एंड माइनस. और सबके मीनिंग तुम्हें मालूम होना चाहिए. डेल्टा U प्लस मतलब इंक्रीजिंग इंटरनल एनर्जी, डेल्टा U माइनस means decreasing internal energy. Plus Q, heat is absorbed by the system. Minus Q, heat is released by the system. Plus W, work done. Plus W मतलब compression, work done by the surrounding on the system. Minus W, work done by the system on the surround, that is expansion. तो ये हुआ हमारा थर्मो फर्स्ट लॉ. तो फर्स्ट लॉ के सेंटेंस देखे और फर्स्ट लॉ का फॉर्मूला देखे. एक बार सेंटेंस वापस देखो फर्स्ट लॉ के. व्हाट इज द फर्स्ट स्टेटमेंट? एनर्जी ऑफ द फर्स्ट लॉ जो हम एक्चुअली उससे उसके पहले भी हमारा फर्स्ट लॉ कौन सा इंफॉर्मेशन देता है? that first law deals with what? The law, it is a law of conservation of energy. Second, according to first law, energy of the system and surrounding will always remain constant. And now we are having the statement. What is the first one? Energy of the universe remains the constant. Second, total internal energy of an isolated system is constant. And third, energy is neither created nor destroyed from one form to another form. Correct? And last one, the mathematical formula for the first law. And what is the mathematical formula? Delta U is equal to Q plus W. तो ये हमारा तीसरा फॉर्मूला हुआ. तीसरा फॉर्मूला अगर कोई मुझे थोड़ा रिकलेक्ट करवाएगा कि हमारा सबसे पहला फॉर्मूला कौन सा किया था हम लोगों ने थर्मोडायनेमिक्स में? अपना स्पीकर या माइक जो भी है वो अनम्यूट करो और बोलो मुझे सबसे पहला फॉर्मूला कौन सा किया था हम लोगों ने अपने थर्मोडायनामिक्स में? सबसे पहला कौन सा फॉर्मूला किया है? अरे बोलो. प्लीज. बोला. अरे अब सगळ्यात पहिला कोणता फॉर्म्युला केला? वर्क डनचा. आणि वर्क डनचे दोन फॉर्म्युले आहेत. त्या वर्क डन मध्ये सगळ्यात पहिला फॉर्म्युला कोणता होता? प्लीज. वर्क डन मधला सगळ्यात पहिला फॉर्म्युला कोणता होता? ओरली सांगा, टाइप करून सांगू नका.
Pressure into volume. Yes, work done is equal to minus P external into delta V, correct? And delta V can be written as V2 minus V1. सेकंड फॉर्म्युला वर्क डनचा कोणता होता? पण त्याच्यामध्ये दोन फॉर्म्युले आहेत, एकामध्ये दोन फॉर्म्युले आहेत. सांगा बघू, वर्क डनचा सेकंड फॉर्म्युला कोणता आहे? Force into displacement. नाही, तो नाही, तो आपला त्याच्यावर आपण डेरिव्हेशन केलंय. आपण वर्क डनचा कोणता फॉर्म्युला डिराईव्ह केलाय सेकंड फॉर्म्युला? प्लीज, अरे 30 जण आहेत की अशीच आहेत की नुसती? आता तुम्हाला पाटणा कोण त्रास द्यायला पण नाहीये ना. वर्गात नेहमी कसं पाटणा यांनी मारलं त्यांनी मारलं, हा चिमटा काढतोय तो चिमटा काढतोय. आता तुम्हाला कोण बघत पण नाही. आई बाबाच पाठी बसले असतील, एक बुकच लावून देतील इकडे तिकडे बघाल तर. सांगा. अरे बोला कोण? डब्ल्यू मॅक्सचा फॉर्म्युला कोणता आहे? विघ्नेश बोल. गौरी काय रे? नाही बोलू शकत? सांगायचं नाहीये. डब्ल्यू मॅक्स फॉर्म्युला कोणता आहे? -2.303 NRT लॉग टू द बेस V2 अपॉन V1. आणि जर प्रेशर असेल तर तोच फॉर्म्युला, फक्त शेवटला काय वापरायचं? P1 अपॉन P2. आणि आजचा थर्ड फॉर्म्युला आपण कोणता केला? डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, बरोबर? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक. इथपर्यंत आपण केलंय. आता पुढच्या लेक्चरला मला तुमच्या वहीमध्ये एक वही बनवायची. जर जुन्या वह्या असल्या तर 2-3 पानं फाडून टाका, कारण आपण गेल्या वर्षी एकच वही वापरली सगळ्या विषयाला, बरोबर? आता उरलेल्या वह्या ज्या असल्या वहीमध्ये हे थर्मोडायनामिक्सचं पहिलं डेरिव्हेशन लिहायचं, वर्क डनचं सेकंड डेरिव्हेशन कॉपी करायचं आणि थर्मोडायनामिकचं फर्स्ट लॉचं इक्वेशन लिहायचं. हे थर्मोडायनामिकच्या फर्स्ट लॉचं इक्वेशन लिहायचं. पुढच्या लेक्चरला आपण याच्यावरती न्यूमरिकल सॉल्व्ह करू, पण अजून एक याच्यावरती थोडा बेस कन्सेप्ट आहे, तो कन्सेप्ट कम्प्लीट करू आणि मग न्यूमरिकल सॉल्व्ह करू. नेक्स्ट टाइम इन सिटिंग फॉर द लेक्चर स्वतः बाजूला जरा कॅल्क्युलेटर असलं कॅल्क्युलेटर पण ठेवून द्या आणि प्लस लॉगबुक पण बाजूला राहू द्या. आणि जरा प्लीज प्लीज रीड करा, असेच बसू नका. आणि जेव्हा लॉकडाऊन उघडेल आणि आपण जेव्हा पहिली वेळ वर्गामध्ये जेव्हा भेटू, तर मी सगळ्यात पहिले तुमच्या वया चेक करेन. ज्याची बुक कम्प्लीट असेल त्यालाच वर्गात बसून देण्याचं घरी पाठ. थर्मोडायनामिक्स वाचायला सुरुवात करा. शेवटला जाईपर्यंत आपलं काय चाललंय तुम्हाला कळणार नाही. ठीक आहे? एक मिनिट, मला किती जण आहेत बघू दे जरा. एक मिनिट, लगेच एक्झिट करू नका. 34. ओके. Okay, so now I'll stop it over here. We'll continue in the next lecture. Okay, thank you. But before that, anyone has any difficulty in first law of thermodynamics? Please, before you all exit, please tell me if anyone has any difficulty in first law of thermodynamics. Please tell me. Darshan saying no. Okay. Quite difficulty आहे का कोणाला? Okay. We'll stop it over here.